students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is learning Adobe Photoshop CC. Objectives of learning about Adobe Photoshop, components of the Adobe Photoshop CC, the Photoshop toolbox and various tools, background and foreground colors, saving a file in Photoshop. In our daily lives, we click many photographs to save them as good memories. Usually, we would like to change a few things in the photographs like remove an unwanted background, make the picture brighter, add text, etc. To finally edit and manipulate our photographs, we use Photoshop CC. तो डेली लाइफ में हम सभी को अलग अलग लोकेशंस पे फोटोग्राफ्स खींचने का बहुत शौक होता है. अब इन फोटोग्राफ्स में अगर एडिटिंग स्किल्स को ऐड कर दिया जाए तो आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है. तो इसी रीज़न के लिए टेक्स्ट ऐड करने के लिए, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत फाइन तरीके से एडिट करने के लिए, उसको और ब्यूटिफाई करने के लिए आपका फोटोशॉप CC को यूज़ करा जाता है. Adobe Photoshop CC. Adobe Photoshop CC is an image editing software designed to modify and enhance the quality of images. It has been developed by Adobe, a computer software company in California, USA. Photoshop is a popular software used to edit photographs and pictures. Photoshop CC, a part of the Adobe Creative Cloud, is the latest version of this software. अब आपका क्या है, Adobe Photoshop CC जो है वो इसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी फ़ोटोज़ की एडिटिंग के लिए और उसको और एनहांस करने के लिए, फ़ोटो की क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए बनाया गया है. कहाँ पर? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. इसमें आपका Photoshop CC जो है उसको यूज़ करा जाता है पिक्चर्स में टेक्स्ट ऐड करने के लिए, ग्राफिक्स ऐड करने के लिए और उसको और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई करने के लिए. Some of the applications of Photoshop CC are: number 1, you can create graphics containing both images and text. Second, you can design graphics for a web page or a website. 3, you can create photographs that look deceptively real, actually are not real. You can enhance a photograph by correcting its flaws and imperfections. Number 4, it is used to create a photo collage, that is, to combine various photographs into one single file. Number 5, it is used for making layouts for newsletters, magazines, newspapers, etc. अब Photoshop CC से आप क्या क्या कर सकते हैं? कभी कभी हियर एंड देयर थोड़ी बहुत आपकी इनपरफेक्शंस आ जाती हैं फ़ोटोज़ में, छोटे छोटे मार्क्स आ जाते हैं, उनको अगर हटाना हो तो आपका Photoshop CC यूज़ हो सकता है. टेक्स्ट ऐड करना है, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, उसको और ब्यूटिफाई करना है, एनहांस करना है. आपकी वेबसाइट्स पे अलग अलग जो पेजेस होती हैं, डिज़ाइन ग्राफिक्स के पेजेस होते हैं, उनको अगर आपको यूज़ करना है, इंसर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप Adobe Photoshop CC से कर सकते हैं. Inspiration. Photoshop was originally created by two brothers, Thomas and John Knoll, in 1987. Together they developed Image Pro, which was eventually bought by Adobe to create what we now know as Photoshop. तो सबसे पहले ये जो Photoshop आज की डेट में आप जान रहे हैं, इसका नाम था Image Pro, जो कि इन्वेंट करा था थॉमस एंड जॉन क्नॉल, दो ब्रदर्स थे, 1987 में करा था. एंड फाइनली इसको Adobe ने खरीद लिया था और उसके बाद इसको रीनेमिंग करी गई एज Photoshop. Next in the list is starting Adobe Photoshop. To start Photoshop CC, follow the steps given below. Step 1, click on the Start button. The Start menu appears. Step 2, click on the Adobe Photoshop CC 2018 application. The Adobe Photoshop CC 2018 Get Started window appears. Step 3, click on Create New button to create a new document. The Photoshop window will open up on your computer screen. अब अगर आपको Adobe Photoshop CC को open up करना है तो सबसे पहले आपको Start बटन पे जाना है. उसके बाद आपके सामने एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको Adobe Photoshop CC 2018 का जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है. आपके सामने एक गेट स्टार्टेड विंडो की एक विंडो अपीयर हो जाएगी Adobe Photoshop CC 2018 की. इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू बटन पे. एक नया डॉक्यूमेंट ओपन अप हो जाएगा और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक नया विंडो ओपन अप हो जाएगा आपकी इमेजेस को एडिट करने के लिए. Creating a new canvas. To create a new Photoshop image file, follow the given steps. Step 1, select the file menu and click on new option in it. The new dialog box appears. Step 2, enter the details like name of the file in the name text box. Set up the size of the file in different forms of measurements like pixels and inches. Step 3, specify the resolution value in the resolution text box and mention the color in the color mode text box. Step 4, select the desired background content.
white background color and transparent from drop down options. Step 5, click on the create button. A new blank Photoshop canvas will be created. अब अगर आपको एक नया canvas बनाना है, सबसे पहले तो आपको फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करना है. फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन पे जाना है. आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द फाइल, जो आपका नेम टेक्स्ट बॉक्स में डालना है. फिर आपको सेट करना है आपकी फाइल का साइज, अलग अलग फॉर्म्स और मेजरमेंट्स, पिक्चर्स, इंचेस, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड कर लेनी है. फिर आपको स्पेसिफाई करना है रेजोल्यूशन वैल्यू, जो कि आपका रेजोल्यूशन टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें आपको डिफाइन करना है. उसके बाद आपको मेंशन करना है कलर मोड टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें आपको कलर को स्पेसिफाई करना है. फिर आपको बैकग्राउंड कंटेंट वाइट कलर का होगा, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, कितना ट्रांसपेरेंट होगा, आपके ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में से आपको ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेनी है. फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन पे. आपका एक नया ब्लैंक फोटोशॉप ओपन हो जाएगा. टेक टिप: to create a new document from get started window, click on create new button. To create a new document, Ctrl+N. तो आपको अगर नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है आपकी गेट स्टार्टेड विंडो में से, तो आपको क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करना है. और नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप सिंपली Ctrl+N की को दबा सकते हैं. Opening an image in Photoshop. In Photoshop, you can open files using the open recent, browse in bridge, browse in mini bridge, open as and open as smart object commands. Follow the below steps to open an image file in Photoshop. Step 1, select the file, open option from the menu bar. The open dialog box will appear. Step 2, browse the location and select the image which you want to open in Photoshop. Step 3, click on open button. The image will open in Photoshop. अब अगर आपको फोटोशॉप में इमेजेस को ओपन करना है तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं. ओपन रीसेंट, ब्राउज इन द ब्रिज, ब्राउज इन मिनी, ओपन एज, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. तो उसके क्या आपके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको ओपन बटन पे जाना है आपके मेन्यू बार में. उसके बाद आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको जिस भी लोकेशन पे आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है वो आपको ब्राउज करना है, अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है जो भी आप ओपन करना चाहते हैं फोटोशॉप में. उसके बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है, आपकी जो इमेज है वो फोटोशॉप पे ओपन हो जाएगी. Do you know when Photoshop is started, it does not contain any image. We need to create a new file or open an image to edit in it. तो जब स्टार्टिंग में आप Photoshop को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई भी इमेज नहीं होती है. आपको क्रिएट करनी होती है न्यू फाइल और उसमें जाकर आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना होता है एडिटिंग करने के लिए. Components of the Adobe Photoshop CC. The various components of the Photoshop CC interface window are as follows. Application bar, tools panel, document window, timeline panel, options bar, color panel, adjustments panel, layers panel. Application bar. It is the topmost bar of the Photoshop CC interface window. It contains different menus like file, edit, image, etc. to perform the tasks. Options bar. It is below the application bar. It displays different options and properties that are available for a particular tool selected from the tools panel. The options bar changes according to whichever tool you are using. Tools panel. By default, the tools panel is placed on the left side of the screen. It holds various tools that help to perform various operations on images. Color panel. This panel displays the color values for the current foreground and background colors. You can change the foreground and background colors. Adjustment panels, it allows you to change the brightness, contrast, color levels, etc. with the small icons. Layers panel, this panel contains the list of layers that have been added on the current panel. Document window, it displays the file you're working on. Document windows can be tabbed or docked. Timeline panel, it allows you to directly add effects to your images. अब आपके कुछ components हैं, जैसे ही आप Adobe Photoshop CC को खोलते हैं वो components आपको आपकी विंडो पे दिखना शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले विंडो के टॉप पे आता है एप्लीकेशन बार. ये आपकी इंटरफेस विंडो जो होती है फोटोशॉप सीसी की, सबसे टॉप पे आपको यही दिखाई देगा. इसमें आपका मेन्यू होता है, फाइल होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. ठीक उसके नीचे आपका आ जाता है ऑप्शंस बार. इसमें आपके अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं. प्रॉपर्टीज जो भी आपकी फोटोशॉप सीसी में अवेलेबल होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. टूल्स पैनल होता है.
इसमें आपके जितनी भी टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर आपका आता है टूल्स पैनल। बाय डिफॉल्ट जो आपका टूल्स पैनल होता है वो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा। इसमें आपके अलग अलग टूल्स होते हैं जो आपको अलग अलग ऑपरेशंस जो इमेजेस में करने होते हैं एडिटिंग के टाइम पे उसमें हेल्प करता है। देन कम्स योर कलर पैनल। कलर पैनल में क्या होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड यानी कि जो फ्रंट पे कलर होता है एंड बैकग्राउंड यानी कि जो बैक साइड पे इमेज की कलर होता है उसको डिफाइन करता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडजस्टमेंट पैनल। कंट्रास्ट चेंज करना है, ब्राइटनेस को चेंज करना है, सैचुरेशन पॉइंट, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आपको स्मॉल आइकन्स में आपको इनके ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आपका आता है लेयर्स पैनल। इसमें आपकी जो लिस्ट ऑफ लेयर्स होती हैं जो आपकी करंट पैनल में एडेड होती हैं वो आपको शोकेस करता है। देन कम्स योर डॉक्यूमेंट विंडो। इसमें आपका जितना भी डॉक्यूमेंट विंडो जो होती है उसमें आपका अलग अलग टाइप का जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी पिक्चर पे आप करंटली काम कर रहे होते हैं वो आपको लेयरिंग वाइज शो होती हैं। फिर आपका आता है टाइमलाइन पैनल। ये आपको अलाउ करता है डायरेक्टली टू ऐड इफेक्ट्स टू योर इमेजेस। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जब भी आप अडोब फोटोशॉप 2018 सीसी को ओपन करते हैं तो ये कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। द फोटोशॉप toolbox. As you know that the tools panel has the different tools for editing and enhancing images. When you click on any tool, the mouse pointer takes the form of the selected tool. For better understanding, Photoshop tools can be divided into related tools group. तो आपके जो Photoshop toolbox होता है जिस पे भी आप माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं वो उसी टूल बॉक्स का जो शेप होता है वो ले लेता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने टाइप के ये होते हैं और किस तरीके से इनको यूज करा जाता है। सबसे पहला है मूव टूल्स। Photoshop provides a tool called Move Tool to move object around the surface. Move Tool is located at the top of the Tools panel. It allows you to move a selection, a layer, a text box and objects by dragging them with your mouse or using your keyboard by dragging them with your mouse or using your keyboard arrow keys. Just press and hold the control key from the keyboard and the Move Tool will become actively instantly, regardless of the currently active टूल। तो पहला है आपका मूव टूल। इसको मूव टूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके विंडो के सरफेस पे उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपके कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, कंट्रोल कीज होती हैं, उनको यूज करते हुए भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। Selection tools. The selection tools help to select an image or part of it to perform different operations like cut, copy, edit or retouching operation. Photoshop provides various selection tools as given on next page. अब आपके आते हैं selection tools. इसमें आपके अलग अलग टाइप की फीचर्स होते हैं जो आपको अलग अलग टाइप की एडिटिंग को करने में हेल्प करते हैं, जो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग फर्दर, note, click on the small triangle at the lower right corner of the tool icon to see hidden additional tools of the Photoshop. अब कुछ आपके जो फीचर्स होते हैं सामने सामने आपको दिखाई देते हैं, बट कुछ आपके हिडन फीचर्स होते हैं। विंडो में बिल्कुल नीचे की तरफ आपके कुछ एक ट्रायंगुलर शेप होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फोटोशॉप के कुछ हिडन फीचर्स भी दिखाई देंगे। Marquee tool. Marquee tool is a selection tool that is used to select an image or part of it in rectangular, square, elliptical or circular shape. The steps to use this tool are as follows. Step 1. Open the image and then click on the small triangle at the lower right corner of the marquee tool. Step 2. A list of tools appears as shown. Select the required tool. Rectangular marquee to select a rectangular or a square area of an image. Elliptical marquee to select an elliptical circular area of an image. Single row marquee to select a single row of pixels. Single column marquee to select a single column of pixels. Step 3. Select the required tool from the list. Step 4. Place the mouse pointer on the image and drag to select the required area. The selected area will have a dashed border around it. तो सबसे पहला आपका आता है मार्की टूल। मार्की टूल आपको क्या इनेबल करता है, अलग अलग टाइप की शेप्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इलिप्टिकल, सर्कुलर, इन सारी शेप्स को ये इनेबल करने में हेल्प करता है। इसके क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको अपनी जो इमेज है उसको ओपन करना है और जो छोटा सा ट्राइंगल है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, जो आपके लोअर राइट कॉर्नर पे आपको विंडो पे दिखाई देगा मार्की टूल के। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट ऑफ टूल अपीयर हो जाएगी। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। पहला है रेक्टेंगुलर मार्की। अगर आपको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की सिलेक्शन करनी है तो आप इसको चूज कर लेंगे। फिर आपका एलिप्टिकल मार्की आता है। ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ओवल शेप का आपको इसका सिलेक्शन दिखाई देगा, तो उसमें आपको एलिप्टिकल मार्की कर देना है अगर आपको ये शेप चाहिए। देन कम्स योर सिंगल रो मार्की।
अगर आपको पिक्सल्स की सिंगल रो की मार्की चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉलम मार्की अगर आपको सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल्स चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपकी जो लिस्ट है उसमें से जो भी रिक्वायर्ड टूल है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इन चारों में से आपको आपके माउस का पॉइंटर इमेज तक लेके जाना है और ड्रैग करना है आपको जितना भी एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो सिलेक्टेड एरिया है वो उसके ऊपर एक छोटा सा डैश्ड बॉर्डर होगा उसके आसपास, इसका मतलब कि वो एरिया सिलेक्ट हो चुका है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यू कैन डीसिलेक्ट द सिलेक्शन बाय प्रेसिंग Ctrl+D कीज। अब आपने सिलेक्शन कर लिया है, आपको नहीं चाहिए वो सिलेक्शन अनडू करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको Ctrl+D को प्रेस करना है, वो सिलेक्शन डीसिलेक्ट हो जाएगा। Next is lasso tool. The lasso tool helps you to select an irregular area of an image by drawing a freehand selection border. This tool is also called freehand selection tool. There are 3 types of lasso tool available in Photoshop. They are lasso tool, polygonal lasso tool and magnetic lasso tool. The steps to use the lasso tool are as follows. Step 1, open the required image. Step 2, click on the lasso tool to select it. Step 3, click at the beginning of the area to be selected. Step 4, drag to trace around the shape to form a freehand selection border. Step 5, to close the selection, click at the starting point again. Step 6, release the mouse button to complete the selection. अब आपके आते हैं lasso tool. इसको आप freehand selection tool भी कहते हैं। जब आपको कोई specific shape नहीं चाहिए होती है बट image का कोई भी random irregular shape आपको चाहिए होता है, तो ये आपको enable करता है freehand से उसकी cutting या selection करने के लिए। अब इसमें आपके पास 3 टाइप के लासो टूल्स होते हैं। पहला है आपका लासो टूल, फिर आपका है पॉलीगोनल लासो टूल और फिर तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो आप उस इमेज को ओपन अप कर लेंगे जिसको भी आपको ये टूल को अप्लाई करना है। फिर आप लासो टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आपका जो भी बिगिनिंग ऑफ द एरिया है सिलेक्ट कर लेंगे आप उसको। फिर आपको ड्रैग करना है ट्रेस करते हुए जिस भी शेप को आपको चाहिए, फ्री हैंड अपने हाथ से आप कर सकते हैं जो भी शेप आपको चाहिए जिस भी इमेज की। फिर आपको अगर सिलेक्शन को क्लोज करना है तो आपको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। अपने माउस बटन को रिलीज कर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। Note, in Photoshop, you can use the shortcuts for the tools easily as they are written to the tool name in the tools panel. For example, the shortcut for lasso tool is L. तो अगर आपको डायरेक्टली इन सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप L को भी अगर प्रेस करेंगे तो आपका lasso tool ओपन अप हो जाएगा। Quick selection tool. Quick selection tool makes a selection based on the color and contrast to the same color in the image that you wish to select. It remembers all the consecutive strokes. This way you can make different selections in a single image also. Perform the following steps to use the quick selection tool. Step 1, click on the quick selection tool. Step 2, drag the mouse over the image to select it. अब आपका है quick selection tool. आपकी जो इमेज उसके कलर होते हैं, कंट्रास्ट होता है, उसके बेसिस पे आप इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको जितने भी कंसेक्यूटिव स्ट्रोक्स हैं उनको आपको एक साथ याद रखना है, रिपीटेडली उसको यूज़ करते रहना है, तो आपका ये यूज़ होता है। इसके क्या स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्विक सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट कर लेना है, अपने माउस को ड्रैग करना है उस इमेज के पार्ट पे जहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज मैजिक वैंड टूल. The magic wand tool allows us to select those areas of an image which share a similar color. When using this tool, we can also set various options for specifying the exact selection in the options bar. These options include tolerance. Tolerance determines how closely the colors should be matched. Specifying a low value selects colors that are very similar to the pixel where we clicked. Specifying a higher value selects a wide range of colors. तो मैजिक वैंड क्या होता है, जब एक ही इमेज में सेम टाइप के कलर्स होते हैं उसमें जब आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस करनी होती है तब ये यूज करा जाता है। इसमें कुछ आपके फीचर्स होते हैं। पहला है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो दो कलर्स हैं किस हद तक वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, कितने सिमिलर वो हैं। तो ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं, कलर्स होता है जो कि आपके पिक्सल्स में जब आप क्लिक करते हैं किसी भी इमेज को तो दो टाइप के कलर्स कितना मैच कर रहे हैं वो टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। एंटी अलाइज्ड, दिस ऑप्शन अलाउज अस टू डिफाइन अ स्मूथ एज फॉर द सिलेक्शन। एंटी अलाइज्ड में आपके जो एजेस होते हैं उसको जब आपको स्मूथ इनफ करना होता है तब यूज किया जाता है। फिर आता है contiguous. This option allows us to select any adjacent areas that share the same colors. अब यहाँ पे क्या है, आपकी इमेजेस में जो जितने भी एरियाज में adjacent sides में आपके सेम टाइप के कलर्स हैं उनकी सिलेक्शन के लिए आपका contiguous
यूज करा जाता है। The steps to use magic wand tool are as follows. Step 1, click on the magic wand tool. Step 2, set the tolerance, anti-aliased and contiguous options in the options bar. Step 3, click on the color that you want to select in the image. All the contiguous areas having a similar color get select. अब आपको कैसे मैजिक वैंड को यूज करना है, सबसे पहले तो आप क्लिक करेंगे मैजिक वैंड टूल पे। इसके बाद आपको सेट कर लेना है टॉलरेंस, एंटी अलाइंस एंड कंटिग्यूअस ऑप्शंस, जो कि आपके ऑप्शंस बार में होगा। इसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए आपकी इमेज का, आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी कंटिग्यूअस एरिया हैं जिनके कलर्स सिमिलर हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टू इन्वर्ट द सिलेक्शन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। अब इसको सिलेक्ट करने का, जब आपको किसी भी सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है, उल्टा कर देना है, तो उसके लिए आपकी क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। Cropping tool. The crop tool is used to select a part of the image and remove everything surrounding it. You can also use it to cut out areas of an image and focus on one section. Photoshop CC provides 4 cropping tools to crop the images in various ways. A. Crop tool. B. Perspective crop tool. C. Slice tool. D. Slice select टूल। तो क्रॉप टूल कब यूज करा जाता है, जब आपकी इमेज के किसी भी पार्ट को आपको क्रॉप करना होता है, काटना होता है, तब यूज करा जाता है। 4 टाइप के आपके ऑप्शंस होते हैं। एक होता है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और चौथा है स्लाइस सिलेक्ट टूल। Follow the steps given below to crop an image. Step 1, open an image in Photoshop which you want to crop. Step 2, select the crop tool from the tools panel. Photoshop automatically places a crop box and handles around your image. Handles can be seen in each of the 4 corners as well as in the middle of the sides. Step 3, just drag these handles to crop the image according to the requirement and press enter key when done. Step 4, don't forget to uncheck the delete cropped pixels checkbox in the options bar to be able to change the crop selection later on. अब आपको किस तरीके से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आप उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन अप कर दीजिए जो आपको क्रॉप करनी है। इसके बाद आपको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में जाके। जैसे ही आप फोटोशॉप पे इसको ओपन अप करेंगे, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल्स पैनल में, एक क्रॉप बॉक्स और आपकी इमेज के चारों हैंडल्स पे आपको एक हैंडल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, चारों साइड्स पे भी प्लस सेंटर पे भी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करना है हैंडल्स को, जितना भी आपको क्रॉप करना है, छोटा करना है, जिस भी तरीके से, जिस भी साइड से आप उसको डिसाइड करिए, पूरा उसको ड्रैग करते रहिए और उसके बाद आप प्रेस करिए एंटर पे, तो आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। डोंट फॉरगेट टू अनचेक डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। जो आपके ऑप्शंस है उसमें आपको अनचेक कर देना है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पे, ताकि आपकी जितनी भी क्रॉप्ड इमेज है वो बाद में जाके दोबारा से चेंज ना हो जाए। Painting tools. Painting tools are used to change the area of the canvas or image by adding paint strokes or filling the areas with color. Photoshop provides different ways of painting tools. Let's learn about them. अब आपके Photoshop में painting tools होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। Let's start to learn about that. Brush tool. The brush tool paints with smooth edges. It works like an ordinary brush. The steps to use brush tools are as follows. Step 1. Open an image of your choice or create a new one. Step 2, click on brush tool. Step 3, in the options bar, define brush tip size. Step 4, in the brush preset picker, select the brush style and adjust the brush hardness. Either increase it for sharp edged strokes or soften it for gradual color transitions. Figure. Step 5, select foreground in the toolbox. The color picker palette appears. Select the appropriate color and click on OK. Step 6, click and drag to draw the strokes. अब पहला है आपका ब्रश टूल। ये आपके एजेस को बहुत सॉफ्ट तरीके से ड्रॉ करता है और आपकी इमेजेस को फाइन तरीके से रिफाइन कर देता है। ये कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो आप अपनी जो भी इमेज है आप उसको ओपन अप करिए या फिर आप एक नई को भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको ब्रश टूल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शंस बार में जाना है, आपकी जो ब्रश का टिप का साइज है वो आपको डिफाइन कर देना है। फिर आपके पास जाना है आपको ब्रश प्रीसेट पिकर पे, ब्रश का स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है और ब्रश की हार्डनेस को आपको स्पेसिफाई कर देना है। या तो आप इंक्रीज करिए अगर आपको शार्प एजिड स्ट्रोक्स चाहिए, या फिर सॉफ्ट कर दीजिए अगर आपको ग्रेजुअल कलर
ट्रांजिशंस चाहिए। ट्रांजिशंस का मतलब होता है चेंज। फिर आपको सिलेक्ट करना है फोरग्राउंड कलर, यानी कि फ्रंट का कलर आपको डिसाइड करना है। टूल बॉक्स में जाके आपके सामने एक कलर पिकर पैलेट अपीयर हो जाएगा, उसमें से आपको जो भी अप्रोप्रिएट कलर लग रहा है उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, और उसके बाद आप क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करिए, आपकी स्ट्रोक्स आपको दिखने लग जाएंगी। नेक्स्ट इज पेंसिल टूल। The pencil tool behaves much like the brush except that it has hard edges. The steps to use a pencil tool are as follow. Step 1, right click on brush tool in the toolbox and select the pencil tool. Step 2, choose brush size and style. Step 3, select foreground color. अब फिर आपका आता है पेंसिल टूल। ये थोड़ा थोड़ा आपके ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। डिफरेंस इतना है कि आपका ब्रश टूल के एजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं पेंसिल टूल के, ये थोड़े से हार्ड होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है आपके ब्रश टूल पे, आपके टूल बॉक्स पर, और वहां पर जाकर आपको पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ब्रश का साइज और स्टाइल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फोरग्राउंड यानी कि आपकी इमेज का जो बैक साइड का कलर होगा या फ्रंट साइड का कलर होगा वो आपको चूज कर लेना है। नोट, on the options bar, you can also define a blending mode and opacity. To draw a straight line, click a starting point in the image, then hold down the shift key and click an ending point. आपका जो options bar है उसमें आप define कर सकते हैं आपका blending mode और opacity। और अगर आपको एक straight line को draw करना है तो आपको एक starting point को select कर लेना है आपकी image का, hold down करना है आपको shift key और click करना है ending point तक। Color replacement tool. Color replacement tool replaces the original color of an image through sampling with the foreground color. By specifying different sampling methods, limits and tolerance settings in the options bar, you can control the range of colors that Photoshop replaces. The mouse pointer will change into a circle with a small plus sign in the center called crosshair. The steps to use color replacement tool are as follows. Step 1, right click on brush tool in toolbox and select color replacement tool from the list. Step 2, set the color which will be used to replace the intended color in the image. Step 3, set the parameters for the tool in the options bar such as size and shape of the brush, the colors blend mode, color choice mode, opacity, etc. Step 4, click the color in the image to be replaced. अब आपका आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो इमेज का कलर होता है वो रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग टाइप की सेटिंग्स को चेंज करते हैं, लिमिट्स को चेंज करते हैं, साइजेस को चेंज करते हैं, टॉलरेंस को चेंज करते हैं, तो उसके करते करते आपका जो कलर होता है इमेज का वो रिप्लेस हो जाता है। इसमें आपका एक सर्कल और उसके अंदर एक प्लस साइन आ जाता है जिसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। अब ये आप कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको जो आपका टूल बॉक्स है उसमें आपको ब्रश टूल पे जाके राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है कलर रिप्लेसमेंट टूल को उस लिस्ट में से। उसके बाद आप कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे जो आप यूज करना चाहते हैं रिप्लेसमेंट के बाद। फिर आपको जो ऑप्शंस बार आएगा उसमें आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका साइज, शेप ऑफ द ब्रश, आपका कलर ब्लेंड मोड, ये सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इमेज के उस पार्ट पे जाना है जिस कलर को आपको रिप्लेस करना है। Mixer brush tool. Mixer brush tool is used to give the effect of mixed colors. The steps to use brush tool are as follows. Step 1, open the image and click on the brush tool in the tools panel. Step 2, you can right click on the arrow at the bottom right corner of the brush tool to view the options list. Step 3, select the desired option. Step 4, select the desired properties like the brush color, stroke style and size, etc. from the options bar. The brush preset picker is used to select from the various brush styles and sizes of brush strokes. Step 5, to set the color of the brush stroke, click on the set foreground color in the tools panel and choose appropriate color from the color picker palette. Then click on OK. Step 6, bring the mouse pointer to the workspace. Step 7, click and drag the mouse pointer to draw brush strokes of selected style, size and color. अब मिक्सअप ब्रश टूल में आपको जब कलर्स को ब्लेंड करके, मिक्सअप करके कलर्स को दिखाना होता है तब यूज करा जाता है। सबसे पहले तो आप इमेज को ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे राइट क्लिक ब्रश टूल पे आपके टूल्स पैनल में जाके। फिर आपको राइट क्लिक करना है ऑन द एरो जो आपके बॉटम राइट कॉर्नर पे होगा ब्रश टूल के, ताकि आपको सारी की सारी ऑप्शन लिस्ट दिख जाए।
जो भी आपका डिजायर्ड ऑप्शन है आप उसको उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे ब्रश का कलर, स्ट्रोक स्टाइल, क्या साइज चाहिए, जो आप ऑप्शंस बार में आपको ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्रश प्रीसेट स्टिकर पिकर होगा वो आपको यूज़ करना है, ताकि आपके जो वेरियस ब्रश स्टाइल्स हैं, ब्रश का साइज है, वो आप चूज़ कर लें। इसके बाद आपका जो कलर है ब्रश का, स्ट्रोक का, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्लिक करना है सेट फोरग्राउंड कलर, जो कि आपका टूल्स पैनल पे होगा। उसमें से आपको अप्रोप्रिएट कलर को चूज कर लेना है आपके कलर पिकर पैलेट में से। कलर को चूज करने के बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है। आपका माउस का पॉइंटर आपको वर्क प्लेस के पास लेकर आना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस के पॉइंटर को टू ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक। आपका सिलेक्टेड स्टाइल और जो कलर है उसी में आपका जो स्ट्रोक है वो दिख जाएगा आपको। Gradient tool. A gradient is a mixture of two or more colors blended together in a definite pattern. The gradient tool is used to fill the selected area in the workspace or an entire layer with the selected gradient. Follow the below steps to use the gradient tool. Step 1. Create a new document in Photoshop CC. Step 2. Select the gradient tool from the tools panel. Step 3. Select one of the preset gradients from the gradient picker on the options bar. Step 4. Drag the gradient tool from the top of to the bottom. The selected gradient effect is applied in the document. फिर आपका आता है gradient tool. इसमें आपके दो या दो से ज़्यादा कलर्स को जब आपको ब्लेंड करके दिखाना होता है तब आपका gradient tool यूज़ करा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक नया डॉक्यूमेंट फोटोशॉप सीसी पे क्रिएट करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल आपके टूल्स पैनल में से। आपको कोई भी एक प्रीसेट ग्रेडियंट जो है ग्रेडियंट पिकर में से जो आपके ऑप्शन बार में होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ड्रैग करना है आपका ग्रेडियंट टूल टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक। आपका जो ग्रेडियंट सिलेक्शन है, जो भी आपने कलर्स को ब्लेंड करा है, वो आपके सामने आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट इज पेंट बकेट टूल. The paint bucket tool is used to fill adjacent pixels that are similar in color in the image. It fills with either the selected foreground color or with a pattern. Follow the steps given ahead to use paint bucket tool. Step 1. Click on the small triangle at the lower right corner of the gradient tool. A list of tools appears. Step 2. From the list, select paint bucket tool. Step 3. Click set foreground color option in the tools panel. Step 4. The color picker dialog box appears. Select the desired color and click on OK button. Step 5. Now click the selected area of the image. The color chosen by you will fill inside it. अब आपका आता है पेंट बकेट। पेंट बकेट में जब आपको सिमिलर कलर को एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, शेप के अंदर फिल करना होता है तो वो आपका यूज़ करा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो स्मॉल ट्रायंगल है आपकी विंडो के राइट डाउन वाले कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर पे जो होगा उस पर आपको सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल के। आपके सामने एक लिस्ट ऑफ टूल अपीयर हो जाएगी। इसमें से आपको जो भी लिस्ट है उसमें से आपको पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेट करना है फोरग्राउंड कलर ऑप्शन, जो कि आपका टूल्स पैनल पे होगा। इस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो कलर पिकर डायलॉग बॉक्स होगा उसमें से आपको डिजायर्ड जो भी आपको कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके ओके पे प्रेस कर देंगे। अब आपका जो भी एरिया, जहाँ पे इमेज के जिस भी एरिया पे आपको कलर चाहिए वहां पर जाके आप उसको क्लिक करिए, पेंट बकेट को लेके जाइए, क्लिक करिए, वो कलर वहां पे फिल इन हो जाएगा। इरेजर टूल. Eraser tool is used to erase a part of an image. There are three types of erasers in Photoshop. Eraser tool to erase all those areas of an image on which you drag the mouse pointer. Background eraser tool to erase the background color from a layer of an image. Magic eraser tool to erase the areas of an image that share common color pixels. तो Photoshop में erase आप basically क्यों करते हैं? Normally किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए। तीन टाइप के इरेजर्स आपको फोटोशॉप में दिखाई देंगे। पहला है इरेजर टूल, जिस भी पार्ट पे आप अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे वो उसको इरेज करता जाएगा। फिर आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल, या आपकी जो इमेज का बैकग्राउंड है उसको पूरा का पूरा इरेज करने के लिए यूज करा जाता है। देन कम्स योर मैजिक इरेजर टूल, या आपके जो कॉमन पिक्सल्स होते हैं या कुछ पार्ट होते हैं ड्राइंग के उसको इरेज करने के लिए यूज करा जाता है। Follow the given steps to use eraser tool. Step 1. Click on eraser tool. Step 2. Click and drag the mouse over the image to erase. अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले तो आपको इरेजर टूल पे क्लिक कर लेना है और आपके उस पार्ट पे लेके जाना है इमेज के जो आपको इरेज करना है। Background and foreground colors.
Two overlapping boxes given below the toolbox display the foreground and background colors being currently used by Photoshop. The foreground color is used by Photoshop to paint, fill and stroke selections. The background color is filled in the erased parts of a drawing. Photoshop also uses the background color to make the ending color in the default gradient fills. The default foreground and background colors in Photoshop are black and white respectively, but you can change these colors through the color picker dialog box. अब आपके क्या होते हैं, बैकग्राउंड यानी कि जो आपकी इमेज के पीछे के कलर्स होते हैं, फोरग्राउंड जो फ्रंट के कलर्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है, आपके जो ओवरलैपिंग बॉक्सेस होते हैं जो जस्ट आपके टूल बॉक्स के नीचे डिस्प्ले रहते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि आपकी करंट इमेज में क्या बैकग्राउंड और क्या फोरग्राउंड कलर्स हैं. बाय डिफॉल्ट आपके जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं रिस्पेक्टिवली, और इनको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं आपके कलर पिकर डायलॉग बॉक्स में से. द स्टेप्स टू चेंज द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आर एज follows. Step 1, click on the foreground or the background color box to open the color picker foreground color dialog box. Step 2, drag the slider to display different color combinations in the color selection box. Step 3, click on the required color from the color selection box. Step 4, click on OK button. The foreground background color will change automatically. अब अगर आपके foreground और background के जो colors हैं वो आपको change करना है तो उसके आपके ये steps हैं. सबसे पहले तो आपको click करना है foreground या background जिसके भी color को आपको change करना है. उसके बाद आपको ओपन अप कर देना है उसको, कलर पिकर फोरग्राउंड डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. आपको क्या करना है, आपका जो स्लाइडर है वो आपको ड्रैग करना है ताकि वो आपको अलग अलग टाइप के कलर्स डिस्प्ले करे आपके कलर सिलेक्शन बॉक्स में. फिर आपको क्लिक करना है आपके रिक्वायर्ड कलर में, जो भी आपका कलर सिलेक्शन बॉक्स होगा, आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए. ओके बटन पे क्लिक करिए. फोरग्राउंड कलर को चेंज किया है तो वो चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड का सिलेक्ट किया है तो वो भी चेंज हो जाएगा. Saving a file in Photoshop. We can save and open files in several different formats in Photoshop. PSD, this gives a .psd extension to its file name. Photoshop files are saved in the format by default. TIF, this gives a .tif extension to the file. Usually .tif files are very big in size. Bitmap, this gives a .bmp extension to the file. It is a file of much smaller size. JPEG, this gives a .jpg extension to the file. .jpeg files are of a very small size but very poor quality too. JPEG stands for Joint Photographic Experts Group. PDF, this gives a .pdf extension to the file. These are very versatile files and can be opened in many different programs. It is a file made by default in Acrobat Reader. अब आपकी जो फोटोशॉप पे फाइल सेव होती है वो मल्टीपल तरीके से हो सकती है. पहला है आपका psd एक्सटेंशन से ये सेव होता है एंड बाय डिफॉल्ट आप जब कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो इसी एक्सटेंशन से सेव होता है फोटोशॉप में. देन कम्स योर TIF, ये .tif एक्सटेंशन के नाम से सेव होता है. जब आपकी फाइल्स बहुत बड़ी होती हैं साइज में तो वो इस फॉर्मेट में सेव करी जाती हैं. फिर आपका आता है बिटमैप .bmp एक्सटेंशन से ये फाइल सेव होती है और ये जो होती है बहुत छोटी होती है साइज में. फिर आता है JPEG एक्सटेंशन से सेव होती है. बहुत छोटी तो होती ही है ये साइज में बट इनकी क्वालिटी भी बहुत पुअर होती है. क्या फुल फॉर्म होता है आपका JPEG का? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. फिर आता है PDF जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करा जाता है. .pdf एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है, बहुत वर्सेटाइल होती है. अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स में इसको आप बड़ी आसानी से ओपन अप कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट ये जो है आपके एक्रोबैट रीडर से ओपन अप हो जाती है. To save a file, follow the steps given below. Step 1, click on the file menu. Step 2, click on the save option. The save as dialog box appears. Step 3, type a file name in the file name box. Step 4, click on the save button. अब आपको अगर किसी भी फाइल को सेव करना है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं. आपको सबसे पहले तो फाइल मेन्यू पे क्लिक कर लेना है, उसमें आपको सेव ऑप्शन पे जाना है. सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. उसमें आपको आपका जो फाइल नेम बॉक्स आएगा उसमें आपको फाइल का नाम डाल देना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है. आपकी फाइल सेव हो जाएगी. Do you know by default the file is saved with an extension .psd in Photoshop. तो by default अगर आप किसी भी टाइप की फाइल को Photoshop में सेव करते हैं तो वो .psd एक्सटेंशन से सेव होती है. Do you know in November 2019 Adobe released a full version of Photoshop for the iPad. तो iPad के लिए full version Photoshop का 2019 में Adobe ने रिलीज करा था.
Let's revise. Adobe Photoshop CC is a graphics software which creates a virtual studio for artists and designers. Application bar, options bar, tools panel and document window are the components of Photoshop Workplace. Photoshop files are saved with .psd extension. Tools panel of Photoshop contains various categories of tools to select, alter, draw or color the images. Lasso tool is used for making a freehand selection. Marquee tool is used to select the area of an image in rectangular, circular, elliptical or square shape. Eraser tool is used to erase a part of an image. Magic wand tool helps to quickly select the area with a similar color. Move tool can be used to copy or move the part of image. Crop tool helps to move the unwanted part of the image. The paint bucket tool fills an image or part of an image with different colors based on the tolerance or a range of colors. तो इस चैप्टर में आपने जाना कि Adobe Photoshop CC जो है उसमें आप अपनी जो इमेजेस होती हैं उनको और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फोटोशॉप पे किसी भी इमेज को सेव करते हैं या फाइल को सेव करते हैं तो वो .psd एक्सटेंशन सेव होती है. मल्टीपल तरीके उससे होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से भी आप सेव कर सकते हैं. फिर आपके अलग अलग टूल्स आते हैं जैसे कि लासो टूल जो आपको फ्री हैंड सिलेक्शन करने देता है. फिर आपका मार्की टूल आता है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, स्क्वायर ऐसी शेप्स जब आपको देनी होती हैं, ऐसे सिलेक्शन करने होते हैं तो आप मार्की का यूज़ करते हैं. फिर आपका मैजिक वैंड आता है जिसमें सिमिलर कलर की जब आपको सिलेक्शन करनी होती है इमेज के अलग अलग पार्ट्स में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. एंड सिमिलरली आपके क्रॉप टूल्स होते हैं, मूव टूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं जिन्हें करके आप अपनी पिक्चर को और भी ज़्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए.